Hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon, sir. How are you? Fine, sir. Amit, can you turn on the camera? Oh, sir, actually, camera is not working. Okay, fine. So let's start with your basic introduction. Sir, my name is Amit Tripathi. I am from Prayagraj, and I have done my graduation BTech from Business Engineering College, and I have completed my training, Manistar training from Apron Technologies, Noida. Okay, so what you have done in your training? Sir, Manistar. Okay, so have you built any demo projects or anything else? Sir, like a small project, to-do list, weather app, and admin dashboard. Okay. So have you used Node.js in these applications? No, sir. Only using REST API. Okay. So do you know the full form of MAN? Yes, sir. MongoDB, Express.js, and React, and Node.js. So you haven't used Node.js in your application? No, sir. Only like a basic knowledge of REST API. Fine. So please elaborate your REST APIs. What have you done? What, sir? What have you done in your REST API applications? Like, sir, put patch update delete, get post put patch delete. Yes. So let's go one by one. What have you done? Like, sir, get is the read data, and post is the create data, and put is the update data, and patch is the update, and delete is the delete. Okay. So why we used this APIs? So like insert CRUD operation, like insert data and delete, create new, update, or like profile update, stuff. So you haven't worked with Node.js, right? Sir, actually basic knowledge only, like reference, so yes. YouTube reference. What's that? What is Node.js? Basic knowledge. So what is Node.js? Sir, Node.js is the server-side language, and this is an open source environment, and Node.js allowed to run JavaScript on server. So can we use Node.js for front-end development? Sir, like a front-end, not only server-side language, like user to track server, like कुछ request send करेगा then इसको response मिलेगा. तो तुमने कभी ऐसे APIs बनाई हैं जो सर्वर साइड? सर APIs तो अभी नहीं बनाया. तो अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड पे ही काम किया सर. फ्रंट एंड में आपने रिएक्ट यूज किया? यस सर. रिएक्ट के बारे में बताइए. Sir, React is a single page application, and this is library, and and building interfaces like UI. Okay. So, have you done something on mobile development also? No, sir. Okay. MongoDB used? सर एक्चुअली PostgreSQL पे मैंने काम किया. MongoDB पे पहले काम किया था, बट अभी आप एक बार उसको. Yeah, basically you have basic knowledge of MongoDB and SQL. Yes, sir. So what is the difference between SQL and PostgreSQL? MongoDB is the non-SQL, and PostgreSQL is the SQL. Means? It is like वो JSON फॉर्मेट में होता है, सर डेटा इकट्ठे और ये
यू मतलब सर नॉन रिलेशन ऐसा कोई रिलेशन ना हो उसका फॉरेन की, मतलब मल्टीपल फॉरेन्स की वो आईडी के बोलने में से वगैरह डेटा पास करना है, तो उसमें पोस्टर उसको What is ES6? ES is the ECMAScript एंड ये सर एक स्टैंडर्ड बनाया गया। लाइक पहले जो है सर ये यूज़ होते थे, लाइक अलग अलग ब्राउज़र के लिए अलग जावास्क्रिप्ट लिखी जाती, तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया ताकि जितने भी डेवलपर हैं इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो बनाएं। इसमें कुछ नए फीचर्स आ गए जैसे कि लेफ्ट कीवर्ड हो गया, कॉन्स्ट एरो फंक्शन आ गया और मैप हो गया, क्लास। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के टाइप्स सर डेटा टाइप लाइक नंबर हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट्स हो गया। बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप सर, बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है डेटा टाइप, अगर हमने कुछ भी नहीं कर रखा तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट एक डेटा टाइप क्रिएट कर देता है सर। लाइक वो स्ट्रिंग होता है। सो मोंगोडीबी में कभी क्रिएट अपडेट वगैरह की? सर मोंगोडीबी में पोस्टग्रेसक्यूएल पे काम किया, बट हाँ एक बार मैं ऐसा करूँगा तो हाँ नहीं, बट यस बिकॉज तुमने मेंशन किया हुआ है माइंड स्टेट डेवलपर, तो माइंड में तो मोंगो और नोड ने किया है। एरे क्या होता है? सर एरे फॉर्म होता है सर, मतलब मल्टीपल चीज़ लिखने का फॉर्म है। उसके अंदर क्या होता है एरे? एरे के अंदर सर वेरिएबल्स लाइक वो डेटा वगैरह किस फॉर्मेट में? एरे के फॉर्मेट में, जैसे कि कोई भी लाइक कोई बाइक कलेक्शन है उसको एक एरे में डिक्लेयर करके तो उनकी सभी बाइक्स को अगर हमारे पास मल्टीपल बाइक्स है तो वो लिस्ट फॉर्म है। हाँ सर लिस्ट फॉर्म में रहते हैं, तो एक वेरिएबल मतलब लिस्ट के फॉर्म में, तो उसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर करके उसको एरे को वेरिएबल्स के टाइप के सर वेरिएबल्स लेट कॉन्स्ट और वेर। डिफरेंस क्या होता है? वेर क्या होता है सर, वो ये ग्लोबल स्कोप होता है जिसको हम रीडिक्लेयर डिसाइन कर सकते हैं, और जो लेट कॉन्स्ट है ये ES6 में आए थे। और कॉन्स्ट में क्या होता है सर, रीडिक्लेयर ये ब्लॉक स्कोप होता है सर, ये रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीसाइन नहीं कर सकते, और उसको कॉन्स्ट को ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना रीसाइन कर सकते हैं। सो हम क्या किसी भी कॉन्स्ट अगर वेरिएबल है यस तो उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर ना रीअसाइन दोनों कुछ नहीं कर सकते। एक बार जो डिक्लेयर कर दिया सर उसको ओके। और लेट को सर उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीअसाइन कर सकते सर सर लाइक सर थोड़ा कंफ्यूजन सो गिट पे कोई रेपो वगैरह है आपके? हाँ सर। तो गिट और गिटहब के बारे में डिफरेंस कुछ होता है? सर गिट एक कमांड लाइन होता है एंड गिटहब एक कम्युनिटी है।
मतलब सर जो किट होता है वो वर्जन वगैरह कंप्लीट मैनेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए जो टूल्स वगैरह होता है। और जो किट वो होता है सर वो जो सर्वर लाइक क्लाउड पे कोई वो होस्टिंग वगैरह जैसे हो गया गिटहब पे पुश कर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हाँ सर ऑब्जेक्ट्स के बारे में सर जी क्या होता है? सर लाइक ऑब्जेक्ट की जैसे कि एक जैसे एग्जांपल में ले लें, एक स्टूडेंट है, उसके जो डेटा है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक मेथड होता है इसका लिखने का। तो क्या हम किसी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं? किसी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रख अपने ट्रेनिंग में और क्या सर? अपने ट्रेनिंग में और क्या करते हैं? ये क्या नाम है कुछ एक्सप्रेस के बारे में बताएं। सर एक्सप्रेस का तो उतना आइडिया नहीं है, बट बेसिक नॉलेज है। क्यों यूज करते हैं? सर ये फ्रेमवर्क है उसका, ये लाइब्रेरी है उसकी, नोड जैसा। यूज क्यों करते हैं नोड जैसा? सर ये इजी कर देता है मतलब कॉन्सेप्ट। कैसे? ये मतलब थोड़ा इसका जो इनपुट आउटपुट का फॉर्म होती है ये फास्ट होता है अकॉर्डिंग टू, और ये सिंगल थ्रेड पे काम करता है, और ये MVC स्ट्रक्चर पे यूज होता है, मॉडल बेस्ड कंट्रोलर। अरे डॉट स्लाइस एंड डॉट स्लाइस क्या? क्या सर? अरे डॉट स्लाइस अगर यूज करना है तो उसका क्या है? सर इसमें क्या मतलब रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं रिटर्न? अच्छा, रिएक्ट में कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं? क्या सर? रिएक्ट में कितने टाइप के कंपोनेंट्स हैं? सर बेसिकली मैंने दो पे वर्क किया है कि फंक्शन कंपोनेंट और क्लास व्यू कंपोनेंट। क्लास पे थोड़ा तुमने किस पे काम किया? सर मैंने क्लास पे काम किया है एक्चुअली। क्लास तो माउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं क्लास पे? सर क्लास में माउंटिंग, अनमाउंटिंग, डिड माउंट, ये सर रिएक्ट की मैं सेट के बोल सकता हूँ। फंक्शनल पे काम नहीं किया कुछ? सर फंक्शन पे मैं थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं सर। एक्चुअली इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन किया था अनपेड वाली, तो उसमें सर मेरे को क्लास पे ही काम करना है। JSX क्या होता है? सर JSX इज द जावास्क्रिप्ट XML। ये एक फॉर्मेट है, मतलब एक टेम्पलेट, मतलब रिएक्ट की टेम्पलेट बनाने के लिए यूज करते हैं, और उसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं रिएक्ट में। HTML की फॉर्म में लाइक क्लास को क्लास के नेम पे रिप्लेस कर दिया। फ्रेगमेंट्स क्या होता है? सर फ्रेगमेंट क्या होता है ना, जैसे कि app.js में जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं, इसमें अगर मल्टीपल लिस्ट बनाते हैं, अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो चलेगा, अगर मल्टीपल लिस्ट बनाएंगे तो हम फ्रेगमेंट यूज़ करके यूज़ करना पड़ता है, तो एरर आ जाती है सर। और लिस्ट क्या होते हैं जो फ्रेगमेंट के अंदर? लिस्ट क्या? जैसे सर राउट वगैरह बनाना है, मतलब तो ये सिर्फ web.js में या किसी भी कंपोनेंट पे हम यूज कर सकते हैं फ्रेगमेंट? सर इसको हम किसी भी कंपोनेंट तो अगर मान लीजिए तुमने एक साइनअप पेज बनाया है, हाँ सर, उस पर तो उस पर फ्रेगमेंट हम क्यों यूज करें? सर मतलब सर ये पैटर्न होता है
मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए। इनसे पढ़ रहे हो अमित? नो सर। और कुछ बताओ अगर कुछ किया है तो। और सर मैंने पहले मैं वर्ल्डप्रेस वगैरह पे काम करता था, जैसे रस्सी वगैरह पे नॉलेज था। ठीक है। NPM के बारे में पता है? यस सर। नोड पैकेज, ये सर पैकेज इंस्टॉल करने के लिए होता है, रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए होता है। NPX क्रिएट रिएक्ट है। अच्छा ठीक है। NPM और NPX में क्या डिफरेंस है? सर NPM क्या होता है ना, वो ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए होता है। NPX एक ग्लोबल प्रोजेक्ट यूज़ करने के लिए होता है। ओके। मिडिल वेयर्स के बारे में कुछ पता है? मिडिल वेयर, यस सर, उसमें बैकएंड में यूज़ किया था मिडिल वेयर। सर ये रिलेशन बनाता है, लाइक उस हाँ सर, रिलेशन बनाने के लिए। MVC पैटर्न क्या है? सर MVC पैटर्न में क्या होता है, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। मॉडल सर जो है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने को, व्यू मतलब सर उसको शो करने के लिए होता है। कंट्रोलर मतलब क्या होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो कनेक्ट करता है मॉडल MV को। व्यू क्या होता है? सर मॉडल व्यू मॉडल व्यू में क्या होता है सर, जो शो कराना है हमें उसको क्या मतलब, तो वहाँ पे क्या करते हैं? क्या सर जैसे कि मॉडल उसको सर जैसे डेटा वगैरह है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। हाँ सर। ओके। और डेटा फ्लो कैसा होता है? ये सर कैसे डेटा कैसे फ्लो करता है जनरेट होता है? सर लाइक रिक्वेस्ट यूनि डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन? सर इसका कंफ्यूजन पहला वर्चुअल डोम के बारे में? यस सर। एक्चुअली सर रिएक्ट जो है वर्चुअल डॉम में ही काम करता है, जो लाइक जिस भी कंपोनेंट का यूज़ करना होता है तो वो डायरेक्ट उससे कर सकता है। ठीक है, फाइन। थैंक यू सर। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इसी तरह के इंटरव्यू वीडियो लाते रहेंगे।